hope you all are healthy and safe at your home. So today we are going to start our new chapter, that is 7th, data handling. Right. So in this particular chapter we will discuss about the data types, that what is data type and how many type of data types we have in the Python language. Next topic will be mutable data type and immutable data types. Next topic will be operators, that how many type of operators we have, like binary operators, unary operators, arithmetic operators, relational operators, and different other operators we are going to discuss in this particular chapter. Next, our topic will be expressions, that what is expression and how we can use expressions in our Python language or Python program, right? And and in the last, in this chapter we will discuss about the library modules. Okay, so we'll start our discussion with the data types. Now, what is data type? It is used to handle data in the Python language. There are different type of data types in the Python, and data can be stored in any of these data types. Now, basically data type is used to handle the data. Like, for example, you want to create a program of getting sum of two values. For that you need two variables, and in these two variables you want to store some data. Okay, so for that we need some data type, that what type of data we are going to store in the variables. Okay, so for that we have different type of data types, like integer data type. Next we have float data type, complex, string, list, and tuples, right? So we'll discuss each and every data type one by one. Now, अगर हम कोर डेटा टाइप की बात करें, so in the Python language core data types are like numbers, string, list, tuples, and dictionary. ठीक है? So all these are what core data types. Now we'll start our discussion with the number. Now, what is number? So these data types are used to store numeric values in the Python. We have three numbers data types. थ्री नंबर्स डेटा टाइप. जो हमारे नंबर डेटा टाइप होते हैं वो न्यूमेरिक वैल्यू को स्टोर करके रखते हैं. और नंबर डेटा टाइप इज फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स, दैट इज इंटीजर, float, and complex number. Okay, now what is integer? So integers are the whole number, that is 5, 10, 15, 20, 100, etc. It can be any value, right? So they have no fractional part. You have to keep this thing in your mind, that integer can't have fractional part, or you can say that integers can't have decimal point in it, right? जैसे मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया है, that is 5, 10, 15, 20, 100. So all these are what non-decimal numbers, means what 5 is not having fractional part. Okay, तो इंटीजर्स हमारे क्या होते हैं, जो सिर्फ रियल पार्ट को या फिर होल नंबर्स को स्टोर करते हैं, और विदाउट फ्रैक्शन. ठीक है, सो देर इज नो फ्रैक्शन इन द 5, 10, 15, 20 एंड 100. ठीक है, तो इंटीजर्स जो है वो हमारे होल नंबर्स होते हैं, एंड दे डोंट हैव एनी फ्रैक्शनल पार्ट. नाउ, integer can be represented with the help of signed and boolean. Now, what is the meaning of signed integer? Signed integer is basically the normal integer representation, like 5. 5 is a signed integer representation, right? Now, next we have boolean. So boolean represents only two values, that is 0 and 1. ठीक है, बुलियन जो है वो हमारी कितनी वैल्यूज को रिप्रेजेंट करेगा, टू वैल्यूज को, दैट इज 0 एंड 1. सो 0 मीन्स व्हाट, फॉल्स, एंड ट्रू मीन्स व्हाट, 1. ओके, और अगर आपको 0 और 1 की इक्विवेलेंट वैल्यू फाइंड करनी है, फॉर दैट वी हैव अ फंक्शन, दैट इज bool. To get the boolean equivalent,
of 0 or 1, we can use bool 0 and bool 1. ठीक है, so bool is a function which will give the boolean equivalent of 0 and boolean equivalent of 1. So 0 will give false and 1 will give true. ठीक है, तो 0 का मतलब क्या होता है, वो false होता है, और 1 का मतलब क्या होता है, true होता है. Right. Now next we have floating point number. What is floating point number? A number with decimal part is known as floating point number. If a number is having fractional part or decimal part, you can say that this particular number is a floating point number, right? So here I've given some example like 12.0, 15.5, 20.50 or 100.23. ठीक है, so all these are what? Floating points. Why floating points? Because each and every number is having decimal part, or you can say that fractional part. And in the here I've given some example of integers type, that is 12, 1, 55, 205, 1, 0, 0, 2, 3. So all these are what? Integers without decimal point. So here I've written with decimal point. So if a number is represented with decimal point is known as floating point number, and a number which is represented without decimal point is known as integer, you can say. Okay, now what is the advantage of floating point? So they can represent values between numbers. Now what is the meaning of values between number? For example, we have 1, we have 2. Now what is the value between 1 and 2? It can be 1.1, it can be 1.2, it can be 1.3 and up to 1.9, एंड फाइनली आपको क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा. ठीक है, तो इन बिटवीन जो वैल्यूज हैं नंबर्स के, वो हम किसकी हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स की हेल्प से. नाउ नेक्स्ट वी हैव दे कैन रिप्रेजेंट अ मच ग्रेटर रेंज ऑफ वैल्यू. अगर आपको एक लार्ज नंबर रिप्रेजेंट करना है तो उस टाइम पर हम किस वेरिएबल का यूज करते हैं, किस डेटा टाइप का हम यूज करते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स का, राइट. नाउ नेक्स्ट वी हैव कॉम्प्लेक्स नंबर. नाउ कॉम्प्लेक्स नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ दिस. आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो होता है a प्लस बी जे. Now what is the what is A, what is B, and what is G here? So A is basically the real part. You can say that it is a real part, and it is a imaginary part. ठीक है, तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं that complex number is basically the combination of real part and imaginary part. So the value of A can be real number, B is also a real number, and J is the imaginary value. ठीक है, जो J की वैल्यू होगी वो क्या होगी, √-1 होगी. अब A की जो रियल नंबर है, रियल नंबर का मतलब है इट कैन बी इंटीजर और इट कैन बी फ्लोट. इट कैन बी इंटीजर और इट कैन बी फ्लोट. ठीक है, इंटीजर एंड फ्लोट, और here you can write integer and float, right. Now here I've given an example of complex number, that is 4 plus 3j. So 4 is a real part and 3j is a imaginary part, right. And the value of j is basically √-1. Now जब आप अपने पाइथन शेल को ओपन करेंगे तो a इक्वल टू में 4 प्लस 3j लिखेंगे. ठीक है, सो हेयर यू आर असाइनिंग complex value to the variable a. It is a variable and it is a complex number. ठीक है, complex value you can say. So you are assigning this value to the variable a here. So here you can see that complex number with non-zero real part. देखो, जब हमारा कोई complex number का रियल पार्ट नॉन जीरो होता है, नॉन जीरो का मतलब होता है जो जीरो से बड़ा हो. ठीक है, जीरो ना होकर जीरो से बड़ा हो, वो हमारा क्या होता है, नॉन जीरो रियल पार्ट.
तो मैंने यहाँ पे लिखा है कॉम्प्लेक्स नंबर विथ नॉन जीरो रियल पार्ट, सो रिजल्ट विल बी रिजल्ट विद पैरेंथेसिस। तो आपका जो रिजल्ट मिलेगा हमेशा वो किसके अंदर होगा, पैरेंथेसिस के अंदर होगा। ये बात नोटिस करने की है आपकी कि जब हमारा रियल पार्ट, दिस इज द रियल पार्ट, अगर ये नॉन जीरो है तो आपका जो रिजल्ट होगा वो पैरेंथेसिस में होगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए एक एग्जांपल है इक्वल टू में 0+4.5j, अब ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर विद जीरो रियल पार्ट। तो यहाँ पे देखो जीरो, ये जो रियल पार्ट है, ये रियल पार्ट है ना, ये रियल पार्ट है, इस रियल पार्ट की वैल्यू क्या है, जीरो। तो ये आपका जो रिजल्ट होगा वो विदाउट पैरेंथेसिस होगा। ये क्या होगा, विदाउट पैरेंथेसिस होगा, क्योंकि जीरो मैटर नहीं करती। जैसे अगर मैं लिखता हूँ 0+1 तो मुझे क्या मिलने वाला है, 1। तो वैसे ही 0+4.5j की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4.5j। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अगर मेरा रियल पार्ट नॉन जीरो होगा तो रिजल्ट होगा पैरेंथेसिस में, और अगर मेरा जीरो जो रियल पार्ट है वो जीरो होगा तो वो विदाउट पैरेंथेसिस के मिलने वाला है मुझे अपना आंसर। नाउ वी कैन रिट्रीव द कंपोनेंट यूजिंग एट्रीब्यूट रेफरेंस। देखिए, अगर आपने कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर इनिशलाइज किया है, तो अगर आपको उसके रियल पार्ट की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप कर सकते हैं, दैट इज जेड डॉट रियल। जेड इज बेसिकली द कॉम्प्लेक्स नंबर वेरिएबल यू कैन से, ठीक है, जिसके अंदर आपने कोई वैल्यू जो कॉम्प्लेक्स वैल्यू है वो स्टोर की है। तो ये क्या रिटर्न करेगा, रियल पार्ट को। वैसे ही जेड डॉट इमेजनरी होगा, जो जेड डॉट IMAG इमेजनरी, तो ये आपको क्या रिटर्न करेगा, इमेजिनरी पार्ट एज अ फ्लोट। ठीक है, फ्लोट में वैल्यू आपको मिलने वाली है। तो मान लीजिए ये एक आपने इनिशलाइज किया है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, दैट इज a इक्वल टू 4+3j। नाउ व्हाट यू वांट टू गेट द रियल पार्ट वैल्यू, so you will write a dot real, so final answer will be 4.0। ठीक है, and if a dot imag, then we will get 3.0। ठीक है, क्योंकि हमें क्या मिलने वाला है, फ्लोट के अंदर वैल्यू मिलने वाली है, राइट। आई होप यू गॉट द पॉइंट। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी in this slide we have string। ठीक है, in this slide we have string। So in the chapter 6 we have covered string part very well। So string is what, it holds the string data, that is any number of valid characters into a set of quotation marks। ठीक है, अगर आप किसी भी वैल्यू को, किसी भी वैलिड करेक्टर को डबल कोटेशन या फिर सिंगल कोटेशन के अंदर स्टोर करते हैं, मतलब हैंडल करते हैं, तो वो हमारा क्या बन जाता है, स्ट्रिंग। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ AB डबल कोटेशन के अंदर, सो A और B है वो क्या है, हमारे अल्फाबेट करेक्टर है, एंड दीज आर वैलिड करेक्टर्स, सो दैट्स व्हाई इट इज अ स्ट्रिंग। ओके, सो डबल कोटेशन के अंदर जब आप एक वैलिड करेक्टर्स को लिखते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है, स्ट्रिंग बन जाता है। नाउ it can hold numbers, it can hold numbers, it can hold letters, it can hold special characters, right? So string can hold number, letters and special characters, so it can be represented with the single quotation and double quotation, right? So here I've given some example of string, valid strings, that is ABC। So it is a characters, it is a sequence of character you can say, okay, and in between the double quotation. Now we have special character, that is question mark, it is also in the double quotation. Now special characters, characters only, characters, alphabets, a combination of alphabets and special character, and alphabets, numeric value plus special characters, numeric value plus alphabets, and this is what, alphabets. So all these are what, valid strings. Now what is string as a sequence of characters? It means what, it means that string is a sequence of characters and each character can be accessed using its index value। Okay, so whenever we store some string value to a particular variable, we know that it is always stored in the memory in the form of cell। आपको पता है कि जो भी हमारी मेमोरी होती है
वो स्टोर करती है इन अ पर्टिकुलर सेल। जैसे अगर मैं मान लूँ कि ये हमारे कंप्यूटर की रैम है, और रैम जो है वो इन ब्लॉक्स के अंदर क्या होगी, डिवाइडेड होगी। ठीक है, तो इन ब्लॉक्स के अंदर जाकर हमारा क्या है, डेटा सेव होता है। तो ये जो ब्लॉक्स है ना, इनका क्या होता है, एक रेफरेंस होता है। रेफरेंस कह सकते हो आप, या फिर इंडेक्स वैल्यू कह सकते हो। ठीक है, रेफरेंस और इंडेक्स का मतलब है कि एक मेमोरी लोकेशन की, मेमोरी लोकेशन, ठीक है, कि किस मेमोरी लोकेशन पे आपका कोई भी जो वैल्यू है स्टोर हुआ है। नाउ हियर आई हैव गिवन एन एग्जांपल दैट इज नेम इक्वल टू में गौरव। नाउ ये जो गौरव आपकी स्ट्रिंग है, ये नेम वेरिएबल के अंदर जाके होल्ड होगी। ठीक है, तो आपकी ये एक मेमोरी है, ये आपको मेमोरी दिखाई दे रही है। ठीक है, तो मेमोरी के अंदर ब्लॉक्स बने हैं, आपको पता है। तो ब्लॉक्स के अंदर जी जो है वो इस वाले ब्लॉक के अंदर सेव होगा, फिर ए, फिर यू, देन आर, देन ए, देन वी। ठीक है, अब इनकी कुछ क्या होगी, इंडेक्स वैल्यू होगी। सो इंडेक्स वैल्यू कैन बी ऑफ टू टाइप, दैट इज फॉरवर्ड इंडेक्सिंग एंड रिवर्स इंडेक्सिंग। So you can say that indexing can be of two type, that is forward and backward। ठीक है, सो इंडेक्सिंग जो है वो फॉरवर्ड भी हो सकती है और बैकवर्ड भी। तो फॉरवर्ड ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द जीरो, 0 1 2 3 4 एंड 5, और जो बैकवर्ड है वो हमारी स्टार्ट होती है -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6, एंड दीज आर व्हाट, इंडेक्स वैल्यूज। ठीक है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है 0 1 2 3 4 5, ये सब हमारी क्या है, इंडेक्स वैल्यूज हैं। नाउ अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर इंडेक्स वैल्यू पर क्या करेक्टर स्टोर है वो अगर फाइंड करना है, सो यू कैन फाइंड विद द हेल्प ऑफ दिस नोटेशन। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे मैंने यहाँ पर क्या है, ये एक नेम वेरिएबल है जिसके अंदर हमने स्ट्रिंग वैल्यू को स्टोर किया है। तो हम नेम वेरिएबल को लिखेंगे, फिर ब्रैकेट के अंदर उस इंडेक्स को लिखेंगे जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, यू हैव टू राइट डाउन द वैल्यू, इंडेक्स वैल्यू फॉर विच यू वांट द करेक्टर। ठीक है, तो आपने जीरो लिखा, तो जीरो पर जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे, सो यू विल गेट जी हेयर, बिकॉज एट द इंडेक्स वैल्यू जीरो वी हैव स्टोर्ड जी हेयर, राइट। तो अगर मैंने यहाँ पे लिखा नेम -2, तो -2 पर क्या स्टोर है, ए, सो यू विल गेट ए हेयर। नेम -1, सो नेम -1 पर आपको क्या मिलेगा, -1। ठीक है, सो दिस इज द वे यू कैन गेट द करेक्टर, you can get the particular character of a string। Okay, now we can also find the length of a string. In the chapter 6 I have explained that how we can calculate the length of a particular string. So for that we have a function that is len. So len function will return the total length of a string. So here is the syntax of len function, that is len, and in the len we have to give string value। ठीक है, जैसे a की वैल्यू क्या है, मैंने यहाँ पे गौरव स्टोर किया है, तो प्रिंट len a। अब जो ये len फंक्शन है ये काम कैसे करता है, इट विल काउंट ईच एंड एवरी कैरेक्टर ऑफ योर स्ट्रिंग। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 6, सो दैट्स वाई वी आर गेटिंग 6 हेयर। ठीक है, तो जो लेन है वो ईच एंड एवरी कैरेक्टर को क्या करता है, काउंट करता है, और फिर वो आपको रिटर्न करता है। नाउ next we have list and tuple and dictionary। now what is list here, so it is a list of comma separated value of any data type between square brackets। अब जो लिस्ट है ना वो क्या है, एक ग्रुप है। ठीक है, group of values which is separated by comma and these values can be of any type। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल रखा है आपके सामने, a इक्वल टू में ब्रैकेट में स्टार्ट हो रही है आपकी, सो 1 2 3 4 एंड 5। सो ये जो वैल्यूज है ये क्या है, आपकी एक लिस्ट है। अब लिस्ट और टपल में दोनों लिस्ट एंड टपल्स आर सेम, बट देर इज अ वन डिफरेंस। ठीक है, एक ही डिफरेंस क्या है कि
हम हमारी जो लिस्ट है वो ब्रैकेट से रिप्रेजेंट की जाती है, और जो हमारे ट्यूपल है इसको आप ट्यूपल भी बोल सकते हो, टपल्स भी बोल सकते हो। ठीक है, यू कैन से ट्यूपल, यू कैन से टपल, राइट। सो आपकी जो ट्यूपल है वो किससे स्टार्ट होती है? आपकी पैरेंथेसिस से। यहाँ पर हम क्या यूज करते हैं? पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस, और यहाँ पर हमारे क्या होती है? ब्रैकेट्स। ठीक है, ओके। तो ए जो है वो क्या है? 1 2 3 4 5। ठीक है, वैसे ही अगर हमने ए इक्वल टू में 1 2 3 4 5 लिखा है, तो ये हमारे क्या है? ये हमारी लिस्ट है। लिस्ट क्यों है? क्योंकि हमने इसको एनक्लोज किया है ब्रैकेट्स के अंदर, और जो ट्यूपल है वो किसके अंदर एनक्लोज है? पैरेंथेसिस के अंदर। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड टपल। ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव dictionary. It is an unordered set of comma separated key value pair within curly braces. अब देखो ये जो डिक्शनरी है इसके अंदर जो वैल्यू स्टोर होती है वो की और वैल्यू पेयर के अंदर स्टोर होती है। ठीक है, की एंड वैल्यू। जो फर्स्ट पार्ट होता है वो की होता है, और जो सेकंड पार्ट होता है वो इस की वैल्यू होती है। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है, we have vowels and we have created a dictionary that is A is the key, 1 is the value, E is the key, 2 is the value, I is the key, 3 is the value, right? And you have to keep one thing in your mind, that key always unique। ठीक है, जो आपकी की है वो हमेशा क्या होती है? यूनिक होती है। ओके, अब देखो सपोज आपको किसी एक पर्टिकुलर की वैल्यू को फाइंड करना है, तो आप क्या लिखेंगे? वोवल्स। वोवल्स क्या है? आपका एक वेरिएबल है, यू कैन से दैट इट इज डिक्शनरी नेम। सो डिक्शनरी नेम के बाद आपको ब्रैकेट यूज करना है, और फिर आपको की वैल्यू को रखना है यहाँ पर। ठीक है, की को यहाँ पर रखना है, और ब्रैकेट को क्लोज करके जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे यू विल गेट द relevant value. I hope you got the point. Now next we have mutable and immutable data types. Now what is the meaning of mutable and immutable? Mutable data types are those data types whose value can be changed in place. ठीक है, म्यूटेबल टाइप्स हमारे क्या क्या हैं? लिस्ट है, डिक्शनरी है, एंड सेट्स है। अब म्यूटेबल डेटा टाइप्स का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अभी मैंने बताया था कि लिस्ट जो है वो किससे रिप्रेजेंट होती है? ब्रैकेट से। तो हियर वी हैव क्रिएटेड अ लिस्ट दैट इज CHK इक्वल टू 246। नाउ इट इज अ लिस्ट वी हैव क्रिएटेड, but what I want, so it is having three index value, that is 0, 1 and 2. Okay, so these are what? Index value. These are what? Index value. So at index 0 we have 2, at index 1 we have 4, at index 2 we have 6, right? Got the point? Now I want to change the value which is stored at the index value 1. ठीक है, so I've written here CHK index value 1, and what I want to replace with 10. So here what I am doing here, so here I am storing storing a new value at the index value 1. So when I will print CHK, when I will print the value of CHK, so result will be 2, 10 and 6. So this is the meaning of mutability, mutable। ठीक है, that you can change the particular value। ओके, तो म्यूटेबल का मतलब क्या है कि अगर आप किसी डेटा टाइप की वैल्यू को चेंज कर पा रहे हो तो वो हमारा क्या होता है? म्यूटेबल। और इम्यूटेबल डेटा टाइप्स वो डेटा टाइप्स होते हैं जिनके वैल्यूज को चेंज नहीं किया जा सकता। जैसे अगर मैं ट्यूपल्स की बात करूं, ट्यूपल्स और यू कैन से दैट टपल्स। ठीक है, ट्यूपल्स की वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते, और ट्यूपल्स किससे रिप्रेजेंट की जाती है? पैरेंथेसिस से। अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ इसका। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वी हैव वेरिएबल इंटरनल्स। वेरिएबल इंटरनल्स, वेरिएबल इंटरनल्स का मतलब क्या है कि जब हम एक वेरिएबल इनिशियलाइज करते हैं तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, कुछ बिहेवियर होता है उसका सर्टेन। तो उसको हम जैसे यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट के डेफिनेशन से हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ऑब्जेक्ट इज व्हाट? इट इज एन एंटिटी
that has certain properties and certain behavior. Means it is an object, it is an object which is having some properties and common, oh sorry, certain behavior, right? So it is a type. Now what is type? ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने कोई एक वेरिएबल डिक्लेयर किया दैट इज ए बी सी इक्वल टू में 10.5, ठीक है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो ए बी सी है ये किस टाइप का है, वेदर इट इज इंटीजर टाइप, वेदर इट इज फ्लोट टाइप, वेदर इट इज कॉम्प्लेक्स टाइप, ठीक है। सो इट इज डिसाइडेड विद द हेल्प ऑफ दिस वैल्यू, ठीक है। और अगर आपकी इसकी वैल्यू को फाइंड करना है कि किस टाइप का है तो उस टाइम पर हम एक फंक्शन यूज करते हैं दैट इज टाइप। तो मैंने देखो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है इक्वल टू 4। अब मुझे जानना है कि जो ए मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया है, इनिशियलाइज किया है, उसका टाइप क्या है। तो मैं लिखूंगा टाइप ऑफ ए, तो मुझे रिजल्ट में क्या मिलेगा, इंटीजर, ठीक है, क्योंकि इंटीजर टाइप का है, क्योंकि इंटीजर टाइप का है। वैसे ही अगर मैं यहाँ पे देखूँ p 5.5 और मैं इसकी टाइप फाइंड करूँगा दैट व्हाट इज द टाइप ऑफ p, सो आई विल गेट फ्लोट हियर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वी हैव वैल्यू। व्हाट इज वैल्यू? सो इट इज द डेटा आइटम कंटेंट इन द ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट के अंदर जो वैल्यू हम स्टोर करते हैं उसको हम एक वैल्यू बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देखो ए बी सी इक्वल टू 10.5, सो 10.5 इज particular data item which we are storing in the ABC, right? Now next we have ID. Now what is the ID? So it is the memory location of a particular object. जैसे हमने ABC को डिक्लेयर किया तो ये हमारी मेमोरी में कहीं पर जाकर रेफरेंस करेगा और उस रेफरेंस वैल्यू को ही हम क्या बोलते हैं, ID बोलते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है ID ऑफ ए, ID ऑफ ए, तो a इक्वल टू 4 है, तो ये जो a है वो कहीं पर तो जाकर रेफरेंस कर रहा होगा हमारी मेमोरी के अंदर। तो सपोज ये मैंने रैंडम नंबर लिया है, ठीक है, ये एक रैंडम नंबर लिया है मैंने ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। तो ये हमें क्या रिटर्न कर रहा है, आईडी रिटर्न कर रहा है। आईडी मीन्स मेमोरी लोकेशन, मेमोरी लोकेशन वेयर अब वेरिएबल a इज पॉइंटिंग, ठीक है। ऐसे ही अगर हम आई ऑफ डी की निकालेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, ये रिजल्ट मिलने वाला है, ठीक है, समझ में आया। तो ये हमारा पार्ट था कि हमारा डेटा टाइप्स क्या होते हैं, कोड डेटा टाइप के अंदर क्या क्या आता है। उसके बाद हमने स्ट्रिंग डिस्कस किया, फिर हमने लिस्ट, टपल एंड डिक्शनरी को डिस्कस किया, उसके बाद म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल और वेरिएबल, ठीक है। अब जैसे मैं एक आपको एग्जांपल लेके दिखाता हूँ म्यूटेबल और इम्यूटेबल का, कि म्यूटेबल और इम्यूटेबल काम किस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं एग्जांपल लूँ, जैसे अगर हम सपोज हम एक यहाँ पर ना ट्यूपल बनाते हैं दैट इज टी इक्वल टू, ट्यूपल हमारी किससे स्टार्ट होती है, पैरेंथेसिस से स्टार्ट होती है, तो हमने किया 1 2 3, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है कि जैसे अगर मैं टी को प्रिंट करता हूँ तो मुझे मिलता है 1 2 3, राइट। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, जो टी का सेकेंड फर्स्ट इंडेक्स है उसकी वैल्यू को मैं चेंज करूँ, ठीक है। एट इंडेक्स 1 व्हाट आई वांट 4, ठीक है। तो ये जो 2 है मैं चाहता हूँ कि 2 की जगह क्या आ जाए, 4 आ जाए। तो जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा तो देखो क्या एरर मिल रहा है मुझे, टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। नाउ इस एरर का मतलब क्या है, दैट यू कांट change the value of tuple, so this is called immutability, ठीक है, that you can't change the value of immutable data types। समझ में आया। वैसे ही अगर मैं लिस्ट को, जैसे एक मैं लिस्ट बनाता हूँ, यहाँ पर मैंने लिखा 1 2 3, ठीक है, और मैंने इस एल को क्या किया, प्रिंट किया, इट इज अ लिस्ट। नाउ व्हाट आई वांट कि ये जो 2 है ये कौन सा इंडेक्स है, 1 है, क्योंकि 0 1 2, तो 1 इंडेक्स पे 2 है, तो मैं चेंज करना चाहता हूँ 1 इंडेक्स की वैल्यू को
और मैं रिप्लेस करूंगा इसको 5 से। ठीक है, नाउ I will print my list here. So here you can see that 1, 5 and 3. There is no error. The value get replaced. ठीक है, तो अब आपको समझ में आया कि म्यूटेबल और इम्यूटेबल का मतलब क्या है। इम्यूटेबल डेटा टाइप वो होते हैं जिनकी हम वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन म्यूटेबल डेटा टाइप वो होते हैं जिनकी हम वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ इस वीडियो को आप देखिए अगर आपको कोई डाउट होता है, and do the practicals on your PC or laptop. Thank you. Stay home, stay safe.